Hello everyone, let's start the question. Question says that a traveling harmonic wave is represented by the equation yxt equal to 10 to the power minus 3 sine 50t plus 2x, where x and y are in meter and t in seconds. Which of the following is correct statement about the wave? Okay, so we have to find out the correct statement, and if we check the statement, it is saying about the wave propagation and it is asking about the axis, okay, either negative or positive, and this speed. Okay, so if we write this equation y x t equal to 10 to the power minus 3 sine 50t plus 2x. Okay, and if we write the general equation, standard equation, it will be y a sine omega t minus kx. Okay, so when we draw the graph, okay, when you draw the graph, this is x and this is minus x. Okay, so if the sine omega and k of same signs, suppose minus minus or plus plus, okay, then the wave always propagate along the in the minus x direction. Okay, if the same sign, but if they have the opposite sign, okay, like here plus omega and here minus x, or here minus omega and here plus x, then the direction of wave propagation will be along positive direction. Okay, along here, if sign is different. Okay, so if we check the question here, the equation here, we see that this is omega, and this is k, and both are having the same sign, that is plus. So the direction will be along negative x. Okay, now we have to find out the velocity. So we can write the velocity, and velocity is omega by k, and in the question omega is 50 and k is 2, so we can write 50 by 2, so this will be 25 meter per second. Okay, so if we check the options, the correct option is negative x-axis with the speed 25 meter per second. So this is the correct answer. Okay, this is the correct answer. So we can write wave is propagating in negative x with speed 25 meter per second. Thank you. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हम लोग पानी के अंदर क्या किया, 600 हर्ट्स क्या होने वाला, 600 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होने वाला एक सोर्स ऑफ साउंड को प्लेस किया है. ओके, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हम लोग को दिया गया है कि 1500 मीटर पर सेकेंड है, एंड एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड है. तो हम लोग को पूछ रहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स रिकॉर्डेड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज स्टैंडिंग इन एयर कितना होगा. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, चेक कर रहे हैं ये क्वेश्चन. वी नो दैट व्हेन waves travel from one medium to another medium. ओके, वेव एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब जाते हैं तब उसका वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी ऑफ द वेव चेंजेस, ओमेगा आई मीन क्या चेंज होगा, v चेंजेस, एंड क्या चेंज करेगा, v चेंजेस, एंड वेवलेंथ लैम्डा चेंजेस. वेलोसिटी चेंज होगा, लैम्डा चेंज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी, हम लोग को बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स है। ओके, सोर्स अगर 600 हर्ट्ज का प्रोड्यूस करेगा तो कहीं भी जाओ, कहीं भी क्या है, कहीं भी मीडियम में जाओ, उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जब क्या जाते हैं, दूसरा मीडियम में एक वेव जाते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। वी नो दैट v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू विल बी कांस्टेंट व्हेन मीडियम चेंजेस। देयरफॉर एक मीडियम से दूसरा मीडियम अगर जाने समय वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तब क्या होगा, लैम्डा ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हुआ तो उसका मतलब है लैम्डा इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन एनी काइंड ऑफ मीडियम। देयरफॉर वी कैन से दैट 600 हर्ट्ज का सोर्स ऑफ साउंड है तो 600 हर्ट्ज ही रहेगा। एयर में, वाटर में, वैक्यूम में, कौन सा भी मीडियम में frequency of the sound will be 600 hertz. Option D is the right answer. In this question we have given two monochromatic ideal gases 1 and 2 of molecular mass m1 and m2 respectively are enclosed in separate containers kept at the same temperature. The ratio of the speed of sound in gas 1 to that of gas 2 is given by. क्वेश्चन में हमारे पास कह दिया है दो कंटेनर जिसमें क्या है, सेपरेट गैस मोनोक्रोमेटिक गैस भरी है। हमारा कंटेनर 1 था, ये हमारा कंटेनर 2 है। ठीक, दोनों कंटेनर में क्या है, गैस भरी है। उसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो हमारी दोनों कंटेनर में गैसेस भरी है इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसमें जो गैस भरी है उसका मॉलिक्यूलर मास m1 है, और कंटेनर 2 में जो हमारे पास गैस फिल है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, m2 है। तो m1 m2 दोनों दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन में और क्या दिया है कि दोनों जो कंटेनर है क्या है, केप्ट एट सेम टेम्परेचर। इसका जो ये हमारा कंटेनर 2 था, इसका जो टेम्परेचर T है, इसका भी टेम्परेचर क्या है, हमारा T है। दोनों के जो टेम्परेचर है वो सेम है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन गैस 1, स्पीड ऑफ साउंड इन गैस 1 मान लेते हैं हमारा v1 है, और स्पीड ऑफ साउंड 2 इन कंटेनर 2 जो हमारा स्पीड है वो क्या है, हमारा v2 है। तो इसमें जो गैस भरी है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, m2 है। यहाँ पे जो कंटेनर 1 में भरी है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है m1 है। अब हमें पता है कि अगर हमारी ये मोनोक्रोमेटिक गैस है तो जो इसका स्पीड होता है, स्पीड का जो फार्मूला होता है, अगर ये टेम्परेचर दोनों सेम है तो यहाँ से देखेंगे v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू गामा आर टी अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास m1। तो गामा मोनोक्रोमेटिक है तो गामा भी सेम रहेगा, आर की वैल्यू सेम रहेगी, और क्या है हमारा टेम्परेचर भी दोनों का सेम है। इसी तरह से v2 की वैल्यू देखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा मोनोक्रोमेटिक है गामा आर टी अपॉन मॉलिक्यूलर मास m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये गामा आर टी दोनों गैस के लिए बराबर है। आर हमारा कांस्टेंट होता है, टी भी हमारा टेम्परेचर दोनों का सेम है, क्वेश्चन में दिया है, और हमारा गामा भी मोनोक्रोमेटिक है तो गामा की वैल्यू भी दोनों की बराबर होगी। तो यहाँ से अगर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से v1 की वैल्यू, यहाँ से क्या दिख रहा है, v1 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन m1। v1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ m1, और इसी तरह हमारा v2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m2। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट m2। तो दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे हमारा v2 और v1 की वैल्यू को, तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आ जाएगा v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट m2 अपॉन m1, रूट m2 अपॉन m1। m2 क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 था, और m1 क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस m1 था। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा गैस है वो मोनोक्रोमेटिक है तो उसके लिए गामा दोनों के लिए बराबर होगा, आर भी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर सेम है, दोनों के लिए बराबर होगा। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो v1 अपॉन v2 आएगा, इससे सिर्फ क्या बचेगा, m2 अपॉन m1 का रूट बच जाएगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो v1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन m1 की, m1 क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास है, v2 क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे 1 अपॉन m2 के। यहाँ पे हमने डायरेक्टली बोला लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट 1 अपॉन m1 के। m1 क्या हमारा मॉलिक्यूलर मास है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो m2 बाई m1 हमारा आ जाएगा वेलोसिटी का रेशियो। तो स्पीड ऑफ साउंड जो का रेशियो होगा गैस 1 और गैस 2 का क्या होगा, रूट m2 अपॉन m1। तो रूट m2 अपॉन m1 यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। थैंक यू। We have a question is that the ratio of the speed of the sound in the nitrogen gas to that in helium gas at the temperature of 300 Kelvin. Okay, so we find out that. Okay, so firstly we write down solution here. Okay, so we know that the velocity in this particle and the formula is v is equal to the under root small r into capital R and T by M. Okay, so we having the ratio of Vn2 nitrogen, okay, upon He helium.
okay, helium gas, that is equals to the under root 7 by 5, okay, into RT, capital RT, and divided by 14, and whole divided by under root 5 by 3 RT and divided by 4. Okay, so this is upon, and it is multiplication, this is upon terms, okay, P upon Q terms, and then we solve. So we solve, we write down in the multiplication form 7 upon 5 R upon 28, okay, after the putting the value, and into under root 3 by 5, okay, and 4 by RT, that is equals to the under root 3 by 5. After solving this, okay, solving and putting the value, so write down solving and putting the value of t, okay, so we get under root 3 by 5. So answer of this question is option C is corrected, and thank you for the watch. Hello students, here is a question. The ratio of the velocity of a sound in hydrogen gas gamma is equal to 7 by 5 to that in helium gas gamma is equal to 5 by 3 at the same temperature is. Now we have to find the ratio of V is equals to root gamma RT by M. So at the same temperature, we can write it as velocity is directly proportional to root gamma by n, right? So we have to find the ratio of the velocity in the hydrogen gas to the helium gas, which is equals to root gamma H2 divided by gamma helium into MHE helium divided by MH2. Now substitute the values and we get is equals to root 7 by 5 into 3 by 5 into 4 by 2, and we get root 42 by 5. This is the final answer. Now check the option. Third option is correct. I hope you understand the explanation. Thank you. इस क्वेश्चन में हमको एक रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट दिया है, इसमें स्पीड ऑफ साउंड एयर फाइंड आउट करने के लिए, और ये पाइप का डायमीटर 5 सेंटीमीटर यूज किया है. द एयर कॉलम इन पाइप रेजोनेंस विथ ए ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है. मतलब एक पाइप कंसीडर करो और इसमें द एयर कॉलम इन पाइप रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है. मतलब यहाँ हम एक ट्यूनिंग फोर्क किया है, इसका फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है. जब ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज है तो एक एयर कॉलम इससे फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस में है व्हेन द मिनिमम लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज 16 सेंटीमीटर्स. मतलब इसमें लेंथ 16 सेंटीमीटर्स है तो तब यहाँ ये एयर कॉलम इससे रेजोनेंस में है.
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इक्वल्स टू 6n, हम n फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू, ये ओपन पाइप है इसलिए ओपन पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई 4 टाइम्स ऑफ l प्लस 0.6 इंटू r। यहाँ ये एंड करेक्शन के लिए हम ये टर्म यूज करेगा 0.6 इंटू r। यहाँ पॉइंट है और यहाँ r इसका रेडियस है। क्वेश्चन में मेंशन किया डायमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स, इसलिए r इक्वल्स टू क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर से। और यह हमको वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड दिया है, इसलिए हम ये सब मीटर्स में कन्वर्ट करेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या है 480 इंटू 4 इंटू लेंथ क्या है 16 सेंटीमीटर्स। हम इसको मीटर 16 प्लस 0.6 इंटू रेडियस इक्वल्स टू 2.5 इंटू मीटर्स में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻² इक्वल्स टू वेलोसिटी इम्प्लाइज सब कैलकुलेट करने से v इक्वल्स टू 336 मीटर्स पर सेकेंड दिया है। और यह क्वेश्चन में विथ द स्पीड ऑफ साउंड इज 6n, हम ये n फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए 6n इक्वल्स टू 336 प्लस n इक्वल्स टू 56 आंसर है। థ్యాంక్ యూ। హలో స్టూడెంట్స్, క్వశ్చన్ చదువుదాం. సో క్వశ్చన్ చూస్తే ఏ స్టీల్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ 1 మీటర్ అండ్ మాస్ 0.1 kg and uniform cross-sectional area that is 10 to the power minus 6 meter square is rigidly fixed at both ends అని చెప్పేసి అన్నాడు. ఓకే, the temperature of the wire is lowered by 20 degrees Celsius and if transverse waves are set up by plucking the string in the middle, calculate the frequency of fundamental mode of vibration. And మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ వాల్యూ అండ్ కరెస్పాండింగ్ ఆల్ఫా వాల్యూ, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దాట్ ఒక స్టీల్ వైర్ అనేది ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఈ స్టీల్ వైర్ అనేది ఇట్ ఈస్ క్లాంప్డ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అట్ బోత్ ఎండ్స్. ఓకే, సో దాని లెంత్ ఎల్ అనుకున్నట్లయితే ఎల్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 1 మీటర్ ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్. అండ్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అది 0.1 kg ఇచ్చాడు. సో లీనియర్ డెన్సిటీ మ్యూ m/l వాల్యూ కనుక్కున్నట్లయితే సేమ్ 0.1 kg పర్ మీటర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇంకా మనకేమన్నాడు, దీని టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ లోవర్డ్. సో వాట్ హ్యాపన్స్ వెన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ లోవర్డ్? సో టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వైర్ లోవర్ అయినప్పుడు లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆపోజిట్ దట్ ఈస్ కాంట్రాక్షన్ వల్ల ఈ వైర్లో సర్టెన్ టెన్షన్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ టెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి గివెన్ బై ద ఫార్ములా A y alpha delta t. ఓకే, సో యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఫార్ములా అండ్ కాంట్రాక్షన్ స్మాల్ కాంట్రాక్షన్ డెల్టా L/L ఆ రెండు ఫార్ములాను మర్జ్ చేసినట్లయితే ఇలా వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో టెన్షన్ కనుక్కుందాం. ఫస్ట్లీ టెన్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఏరియా వచ్చేసి 10 to the power minus 6 meters square అని చెప్పేసి అన్నాడు. y వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా, సో 2 into 10 to the power 11 ఇంటూ ఆల్ఫా వాల్యూ 1.21 into 10 to the power minus 5 ఇంటూ డెల్టా టీ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 20 degrees Celsius బై 20 degrees Celsius డిక్రీజ్ చేశారు. ఓకే, సో 10 to the power 11 minus 6 minus 5, సో ఈ మూడు క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ 2 into 20, సో 2 into 20 చేస్తే 40 into 1.21, సో టీ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 48.4 న్యూటన్స్ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఎందుకు టీ వాల్యూ కనుక్కున్నాను? బికాస్ దీంట్లో ఏమన్నాడు మనకి, ఇఫ్ ద ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఆర్ సెట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ వైర్, ఎలా? బై ప్లక్కింగ్ ద స్ట్రింగ్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, ఫండమెంటల్ మోడ్లో ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో ఫండమెంటల్ మోడ్ అంటే నథింగ్ బట్ మనకి ఏంటంటే సింగిల్ సెగ్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, సో సింగిల్ సెగ్మెంట్ మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. సో దాంట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా v/2l అండ్ v అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ఇట్ విల్ బి గివెన్ బై √T/μ. సో అందుకు టెన్షన్ కనుక్కున్నాను. సో టీ ఉంది, మ్యూ ఉంది, v కనుక్కోవచ్చు కదా. సో v వాల్యూ √T/μ. సో v వాల్యూ √T వాల్యూ 48.4 బై మ్యూ 0.1 అంటే సింపుల్గా దాన్ని √484 రాసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్. ఓకే, √484/1 అని. సో v వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, సో √484 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 22. సో 22 meters per second అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవచ్చుగా, ఫ్రీక్వెన్సీ v/12. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ v/12 v/2 ఇంటూ l వాల్యూ 1. సో 22/2, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి 11 Hz వస్తుందన్నమాట.
देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म रोप है, लेंथ है उसकी 12 मीटर और मास है 6 केजी। ये वर्टिकली हैंग कर रही है रिजिड सपोर्ट की हेल्प से। एक 2 केजी का मास है जो हम वो अटैच कर रहे हैं फ्री एंड ऑफ द रोप से, और ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.06 मीटर प्रोड्यूस हो रही है लोअर एंड ऑफ द रोप पे। तो कितनी वेवलेंथ होगी पल्स की जब ये रीच कर जाएगी हमारी टॉप ऑफ द रोप पे, ये हमारे को बताना है। तो मैं किस टाइप का सिनेरियो है, सपोज एक ये रोप है, ठीक है, ये रोप है हमारी, ठीक है, और इसको हमने वर्टिकली कैसे हैंग किया है, एक रिजिड सपोर्ट से हैंग किया है, यानी कुछ ऐसे हैंग हो रही है ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ब्लॉक जो है 2 केजी का, ये हम फ्री हैंड ऑफ द रोप पे लगा रहे हैं, 2 केजी का एक ब्लॉक यहाँ पे लगा रहे हैं, और जो लोअर एंड है हमारा रोप का, यहाँ पे एक क्या हो रही है, एक ट्रांसवर्स वेव, ऐसी कोई वेव सेटअप हो रही है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है 0.06 मीटर है। अब हमें बताना है कि जब ये वेवलेंथ क्या होगी जब हमारी पल्स की, जब ये टॉप ऑफ द रोप पे पहुंच जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, रोप है, रोप की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन बाय म्यू, जहाँ की म्यू है मास पर यूनिट लेंथ और t हमारी टेंशन है। अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ब्लॉक पे, तो क्या होगा, हमारा ऊपर ऊपर जाने पे क्या होगा, हमारी टेंशन इंक्रीज होगी। टेंशन क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रिंग के पास भी तो मास है, तो स्ट्रिंग का मास हमें जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ज़्यादा फोर्स लगेगा, हमारा स्ट्रिंग के मास को हम ज़्यादा मास को कवर कर रहे हैं। पहले हम इतने को प्लस सपोज 0 मास ऑफ स्ट्रिंग, फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो अपना ब्लॉक प्लस इतना मास ऑफ स्ट्रिंग प्लस, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ रही है, स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ ऊपर जाते जाते लेंथ बढ़ रही है, और हमारा क्या हो रहा है, ज़्यादा मास लग रहा है, तो टेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं एज वी मूव अप टेंशन टी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो टेंशन इंक्रीज कर रही है, इस फॉर्मूले से हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो टेंशन के प्रोपोर्शनल है। तो हमारा क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो नीचे वेलोसिटी होगी v1, लोअर एंड पे बोल देते हैं vl अपॉन v एट अपर एंड, vu किसके इक्वल होगी, t एट लोअर एंड अपॉन t एट अपर एंड का अंडर रूट, इतना होगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, लोअर एंड पे क्या टेंशन थी, टेंशन थी मेरी, देखो 2 kg का mg, 2 इंटू 9.8, ठीक है। लेकिन जब अपर एंड पे गई मैं, तो क्या हुआ, अपर एंड पे जाने में क्या हुआ, हमने क्या किया था, रोप की लेंथ थी 6, मास है रोप का 6 kg, तो पूरा 6 kg मास इसका रोप का भी आ गया और 2 kg हमारे ब्लॉक का मास भी आ गया। तो यानी टोटल मास कितना हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 8g लगेगा, 8 इंटू 9.8 का अंडर रूट, तो ये कितना होगा 2/8 यानी 1/4 का अंडर रूट, या मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2, ठीक है। तो मेरा v एट अपर एंड हो गया 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी एट लोअर एंड, ठीक है, ये आ गया। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ से, हमारी फ्रीक्वेंसी जो वेव सेटअप हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी सेम रह रही है। और हमें पता है v क्या होता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हमारा क्या होगा, हमारी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लैम्डा के, ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ यहाँ से vl अपॉन vu आया 1/2, तो ये मेरा इक्वल होगा लैम्डा लोअर अपॉन लैम्डा अपर के। अब लोअर एंड पे लैम्डा कितना था, 0.06 था, तो यहाँ से लैम्डा एट अपर एंड आ गया 0.06 इंटू 2, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 0.12 मीटर, ठीक है। तो इतनी वेवलेंथ मेरी
हो जाएगी वेव की जब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, टॉप पे पहुंच जाऊंगी। मेरी पल्स की वेवलेंथ हो जाएगी 0.12 मीटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कॉपर वायर है, ये हमने रखी है 2 एंड्स को सपोर्ट करके, रिजिड सपोर्ट तो दिया है दोनों एंड्स की तरफ से। 30 डिग्री सेल्सियस पे वायर क्या होती है, हमसे जस्ट टॉट कर देते हैं नेग्लिजिबल टेंशन से। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव निकालनी है 10 डिग्री सेल्सियस पे। हमें गिवन है कि यंग मॉडुलस है कॉपर का 1.3 इंटू 10⁻11। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है कॉपर का 1.7 इंटू 10⁻⁻5 और डेंसिटी ऑफ कॉपर है 9 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इससे हम क्या कहते हैं, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है हमारा, ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा थीटा। तो यहाँ से मैं डेल्टा एल क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा एल लिख सकती हूँ एल अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और ये भी लिख सकती हूँ कि डेल्टा एल बाय एल क्या होगा, अल्फा डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, अब स्ट्रेस ऑन द वायर क्या होता है, स्ट्रेस होता है मेरा एफ बाय ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई डेल्टा एल बाय एल। स्ट्रेस को मैं इस टर्म्स में भी लिख सकती हूँ वाई डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से मेरा फोर्स एफ क्या आ गया, यह आ गया वाई ए डेल्टा एल बाय डेल। डेल्टा एल बाय एल की जगह मैं वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा दे देती हूँ। तो ये मेरी आ गई फोर्स की इक्वेशन वायर के केस में। अब हमें पता है कि जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की वो होती है अंडर रूट ऑफ एफ बाय म्यू। ठीक है, जहाँ एफ क्या है, एफ होता है हमारा टेंशन इन द वायर जो कि हमने अभी निकाली, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एफ को लिख सकती हूँ वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा, और म्यू को लिख सकती हूँ मास पर यूनिट लेंथ। मास को मैं रिप्लेस कर दूँ वॉल्यूम इनटू रो से, और पर यूनिट लेंथ यानी ये आ गया। तो यहाँ से ए एल और ए एल कैंसिल हो गया, मेरी स्पीड आ गई ट्रांसवर्स वेव की अंडर रूट ऑफ वाई अल्फा डेल्टा थीटा बाय रो। तो अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। वाई मेरे को कितना गिवन था क्वेश्चन में, ये गिवन था 1.3 इंटू 10⁻11। अल्फा होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻5, और डेल्टा थीटा क्या है यहाँ पे, डेल्टा थीटा 20 डिग्री सेल्सियस है, चेंज इन टेम्परेचर हमारा। बचा क्या, रो हमारा डेंसिटी है 9 इंटू 10⁻3। इस पूरे का अंडर रूट करना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा, 70 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव आ गई 70 मीटर पर सेकेंड, यही पूछा था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।